नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम लोक सेवा आयोग द्वारा 16 जनवरी को आयोजित परीक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उनके त्रुटिपूर्ण विकल्प के आरोप कई उम्मीदवारों ने लगाए हैं, लेकिन हद तब हुई जब त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उनके विकल्पों को दर्शाते हुए परीक्षा हॉल से ही ली गई तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर के वायरल होते ही कई उम्मीदवारों की तरफ से आरोप लगाया गया कि परीक्षा में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कहीं परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर जाने की खबर आई तो कहीं उम्मीदवारों को देर तक परीक्षा केंद्र में अनुमति देने की बात सामने आई। और इस तरह के आरोप के बाद आयोग ने एक बार फिर रिवाइज्ड आंसर की प्रस्तुत किया और जिन प्रश्नों के विकल्प गलत थे उनके लिए उम्मीदवारों को पूरा मार्क देने की बात कही। आयोग की सफाई पर एसटीएफ सहित परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी खुश नहीं हैं। आखिर परीक्षा केंद्र के भीतर नियमों को ताक पर क्यों रखा गया? आयोग के तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन परीक्षा दोबारा कराए जाएंगे या नहीं, इस पर आयोग ने कुछ नहीं बोला है। परीक्षा दोबारा हो या इसकी जांच हो, लेकिन सवाल यह है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में अगर इस तरह की त्रुटियां सामने आई हैं, तब निचले स्तर की परीक्षा पर भरोसा कैसे होगी? आज मुद्दा में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएफ पार्टी के छात्र विंग के नेता रिंजिंग नोरबू भूटिया, सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शंकर शर्मा और शिक्षाविद तीर्थ शर्मा। आप सबका मुद्दा में स्वागत है। सबसे पहले सभी मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले रिंजिंग नोरबू भूटिया के पास जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मुखर रहे हैं और इसमें क्या त्रुटियां हैं उसको लेकर वो पिछले 2-3 दिनों से कई बार उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं। क्या आपको लगता है कि इस परीक्षा में जो इनजस्टिस हुआ है, उम्मीदवारों को जो कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद इसमें भाग ले रहे थे, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित हो और इसके लिए आप किस हद तक दबाव बनाएंगे? Thank you, sir. Thank you for putting this matter to the national platform, which was in dire need. Actually, re-examination in matter to that, I think the commission should really go for re-examination, because this examination is not only an ordinary examination in our state, but it is one of the most reputed examination. So it is already delayed for 2 years. So exam is already delayed for 2 years. So this shows the failure to ensure orderly employment opportunity at the correct age of the aspirants. So what happened during the course of examination was there was a total violation of 90% of its instruction provided by the SPSC itself, by the use of mobile phones and other code of conduct of examination, which was to be properly maintained and followed, was totally violated. And here also we can see the errors in the questions and all in the answer paper also. So this examination, this particular examination is allocated for 62 seats only, wherein the total number of applicants, if you see, it is much more than 8,000, where hundreds of applicants were denied to sit for this examination because of their qualification. So after hundreds of applicants been rejected, 8,000 aspirants were qualified to sit for this examination. So if you see in the percentage ratio of 62 as well as 8,000 applicants, we can find it is only 0.77, which is much more less than 1%. So the exam is already delayed for 2 years. And it shows the government, in this particular process, it shows the government failure to ensure orderly employment opportunity at the very correct age of the aspirants. Because if you see, hundreds of applicants have been rejected because of their respected age bar, which was not qualified for this respected exam. So this has been playing with the lives of many young people. And secondly, the government is not serious about the employment of the young people. And hence, we have the chairman appointed by the government itself for this commission, who does not conduct the respect of the commission. And third is, how can the examination be conducted in such a way that they did by allowing certain sections of the people to use mobile phone inside the examination hall? So what were the invigilators doing? Were they earlier informed, or were they earlier asked to allow certain section of the people to use mobile phones? And the other thing is that this they cannot favor some
Whereas in majority, we have lot of other candidates which are in thousands of number. Lot of futures are in this. A lot of futures are put on stake for this particular examination. So here, what we see is we demand from the SD party, we demand a probe by a sitting judge, and to hold all responsible accountable. We also demand for this particular examination to again reconduct in a transparent, in a fair way, and also the answer examination to papers to be set by such competent people who knows the level, of this, who knows the level जी of in what level of this question must be set up, and also the examination answer paper. जी ठीक है। पहली प्रतिक्रिया आपकी आ गई रिंगिंग नोरबू भूटिया साहब। अब हम शंकर शर्मा के पास चलते हैं। शंकर शर्मा जो सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हैं। शंकर शर्मा, आपने देखा है आपके हिसाब से छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और नोरबू भूटिया साहब ने भी कहा कि पिछले कई सालों से वो तैयारी कर रहे थे, पिछले 2 साल से परीक्षाएं भी नहीं हुई, और ऐसे में इस तरह से उनका भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। आप यूथ फोरम के तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के जो आयोग की तरफ से जो परीक्षाएं संचालित की जा रही है और इसमें इस तरह की त्रुटियां आई हैं और आयोग की जो सफाई आई है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये एग्जाम जो हो रहा है, एक तो सिक्किम में इस तरह का एग्जाम रेगुलरली होता नहीं है। ये अंडर का एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था 2017 में, जो 2017 के बाद फर्स्ट टाइम अंडर के लिए एग्जाम हो रहा है। लेकिन अकाउंट ऑफिसर और जो डीएसपी का पोस्ट था वो तो 2013 से फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो लगभग 10 साल के बाद एक एग्जाम हो रहा है। अब एग्जाम में देखिए, ये जो जिस तरह का मिस्टेक्स है ना, ये अनएक्सेप्टेबल है। और इस तरह का मिस्टेक तो जो स्कूल में छोटे-छोटे वीकली टेस्ट करते हैं, इसमें भी इस तरह का मिस्टेक्स नहीं होता है। जिस तरह का क्वेश्चंस में मिस्टेक दिखाया गया, किसी क्वेश्चन का आंसर में करेक्ट ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इस तरह का जो मिस्टेक है, ये बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए इस लेवल का एग्जाम में। इवन स्कूल लेवल में छोटे-छोटे वो वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट में भी इस तरह का मिस्टेक होता भी नहीं है इस तरह का मिस्टेक। और इसमें एक और बात देखिए, वो जो एग्जाम हो रहा है इतने सालों के बाद, एक्सपीरियंस इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे ने कोचिंग ये सब लिया था। और एग्जाम हॉल में देखिए, जब पहले एग्जाम हुआ था 2017 में एग्जाम हुआ था, उस समय पे मुझे भी पता है, वो नेटवर्क जैमर लगाया गया था एग्जाम सेंटर्स में, जहाँ पे फोन में जो नेटवर्क ही आता ही नहीं था। लेकिन इस बार तो इस तरह का कोई प्रोविजन भी नहीं था। और ये जो बाहर आ रही है ना बातें कि ये कहीं पे फोन अलाउड किया गया, और एक्सपीरियंस कोई बीबीस में वो वॉशरूम फोन लेके जा रहे थे। बहुत सारी चीजें जो बाहर नहीं आया है। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक हॉल में ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर कुछ पेज ही नहीं था वहाँ पे। वो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी वो सील ओपन किया गया था। इस तरह का जो मिस्टेक्स है, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और देखिए, अब अभी इस समय हम क्या मांग कर रहे हैं कि एसपीएफ की तरह से हम क्या मांग कर रहे हैं कि देखिए, जो नुकसान हुआ है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स दूर जगह से आए थे वहां पे एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो इरिपेरेबल लॉस हुआ है। लेकिन लिस्ट व्हाट द कमीशन कैन डू नाउ इज कंडक्ट अ फेयर एग्जाम अगेन। तो ये लिस्ट एक सबसे कम ये काम कर सकती है कमीशन। और हम भी यही बात बोल रहे हैं कि फिर ये एग्जाम किया जाए और एग्जाम फेयर हो, और जो एसपीएससी का गाइडलाइंस है उसी तरह का एग्जाम हो। हम भी यही सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम से यही मांग कर रहे हैं अभी। जी, आप सबकी मांग ये है कि ये जो परीक्षा है एक बार दोबारा हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां सामने आई है। हमारा मकसद भी यही है कि जो इतनी बड़ी परीक्षा है इसमें जो गलतियां हैं वो सामने आए। हमने कोशिश की तमाम पार्टियों से जो वहाँ अलग अलग मुद्दों को उठाते रहती हैं वो इस मुद्दे को भी उठाएं, और बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आए। हम एक मंच दे रहे हैं, सिक्किम को आवाज़ दे रहे हैं और वहाँ के युवाओं को आवाज़ दे रहे हैं जो आज परीक्षा में बैठकर पछतावा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको ये मौका मिल सकता था, उनको मौका नहीं मिला। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं
ये आवाज़ आगे तक जाए, यही हमारा मकसद है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षाविद तीर्थ शर्मा। तीर्थ शर्मा, इसमें जो बात सामने आई है और थोड़ी देर पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं शंकर शर्मा, वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी परीक्षाओं में वो गलतियां नहीं होती हैं और ये शीर्ष स्तर का परीक्षा है। यूपीएससी के बाद अगर कोई दूसरा परीक्षा है तो राज्य स्तर में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उसमें इस तरह की गलतियों को आप किस तरह से देखते हैं? ये गलतियां आखिर क्यों हो जाती हैं? धीरज जी, आप सभी को नमस्कार। जो ये गलती हुआ है ये आज से नहीं है। इवन आई टोल्ड इन द मीडिया डे बिफोर यस्टरडे आल्सो कि ये जिस समय से मैं देख रहा हूँ ये इस तरह की गलती जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी रिपीटेडली कर रही है, ठीक है, और इसके लिए बहुत सारा आवाज़ भी उठा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोर्ट में गए, कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद कोई नतीजा नहीं आया। तो इस साल जिस तरीका से ये मुद्दा उठी है, और मैं सीएम साहब भी आज इंटरव्यून करके उन्होंने भी माने हाई कमेटी बैठा दिया है, और हाई कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो भी शीर्ष पद के अधिकारी लोग हैं। जैसे आर तेलंग साहब है, वो काफ़ी सालों से सिक्किम में एज अ IAS ऑफिसर है, अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी वो है यहाँ पे। तो अभी अक्षय सचदेवा जी है, वो भी IPS ऑफिसर से अलॉन्ग विथ सम अदर सेक्रेटरी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट अभी इसका कमिटी में है। तो मुझे लगता है कि इस तरीका की गलती हुआ है, लेकिन सिविल सोसाइटी भी इस तरीका से ये इश्यू को कभी नहीं लिया, और मीडिया तक आज से मैंने पहले तो इतना सोशल मीडिया भी इतना वाइब्रेंट नहीं था। तो हो सकता है मे बी इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द सिविल सोसाइटीज और द एक्सपीरियंस, ये मुद्दा को ठीक से उठ नहीं पाया। और आप तो जानती ही ये सिक्किम छोटा सा जगह है, यहाँ के लोग बहुत चीज़ से डरते हैं। एक तो वो मीडिया के सामने नहीं आते, और अगर कोई स्टूडेंट इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आया उसको साथ नहीं मिलता है। जैसे आज मैं देख रहा था कि SPSC के ऑफिस में 8,000 बच्चे के ये मांग थी, ये 8,000 बच्चे का ये सवाल था, लेकिन बस 2 ही बच्चे वहाँ पे पहुँचे थे। तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड काइंड ऑफ फियर, क्योंकि ये छोटी सी जगह है। अगर कोई आके इस मुद्दे में आके पब्लिकली बोलेंगे, कल वो विक्टिमाइज हो जाएगा, कल उन पर कोई प्रेशर्स होगा। इसके चलते भी ये इश्यूज बढ़ते गया। तो अभी मुझे उम्मीद यही है, अभी का सरकार जो सुन रही है, तो CM साहब ने हाई कमेटी बैठा दिया है, और जिस तरीका से एक सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट भी आगे आके इस मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दा पर लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इशू अब फ्यूचर में ऐसा इशू और कभी सिक्किम से मिलेगा नहीं। और इससे एक जो कंडक्टिंग बॉडी है SPSC, जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो लोग भी बहुत केयरलेस करते हैं, क्योंकि जिस तरीका से वो केयरलेसेस हुई है वो एक बूंदे में नहीं है। सिर्फ एग्जाम में केयरलेस का बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ है, क्वेश्चन का पैटर्न में, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस और सिक्योरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पेपर। और काफ़ी बच्चे तो बोल रहे हैं उनको जेरोक्स कॉपी मिल गया, तो वो जेरोक्स कहाँ पे किया, कैसे किया, बहुत सारे इशू है। तो अभी हो सकता है कि विदिन 21 डेज हाई कमिटी विल गिव रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, और तो सच सामने आएगा, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा स्थिति और रिपीट नहीं होगा। जी, हाई लेवल कमेटी गठित की गई है इस मामले को जांच करने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम इस स्तर तक कैसे पहुंच जाते हैं जहां जांच की बात आती है। इससे पहले क्या इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता? जिस केंद्र में परीक्षा पेपर लीक हुई है, जिस केंद्र में तस्वीर सामने आई है फ़ोटो खींचने की, मोबाइल ले जाने की, जिस केंद्र में ये बातें सामने आई है कि परीक्षा अनाउंसमेंट के आधे घंटे 1 घंटे बाद तक उम्मीदवारों को जाने दिया गया, और जिस केंद्र पर ये भी बातें सामने आई है कि वहाँ पर वॉशरूम में आधे घंटे तक उम्मीदवार रहे और फिर उसके बाद आके उन्होंने दूसरी OMR सीट मांगी। इस तरह के जो केंद्र हैं, उस केंद्र से आए परीक्षा को सबसे पहले सील करके उसको एक तरह से रख देनी चाहिए जांच के लिए। ये काम कमीशन को पहले करने चाहिए थे, लेकिन जब ये सवाल उठाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, तमाम जो संगठन है उनके द्वारा, तब ये कमीशन ऐसा करता है। लेकिन इससे पहले अगर करता तो शायद ये सवाल नहीं उठते। एक बार फिर हम जानना चाहेंगे
जो हमारे मेहमान हैं रिंगजिंग नोरबू भूटिया साहब, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एसपीएससी पेपर लीक मामले की, जिसमें ये आरोप आए हैं कि पेपर लीक हुआ और कई जगह गड़बड़ियां देखने को मिली है। हम आपको सुनाना चाहते हैं कि किस तरह के आरोप लगे हैं और पेपर में किस तरह की खामियां हैं। एसटीएफ के स्टूडेंट विंग की वंदना वो बता रही हैं कि जो पेपर में खामियां थी वो किस तरह की थी। साथ ही आपको प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। गणेश राय हैं रिफॉर्म कॉल के, उनकी भी प्रतिक्रिया सबसे पहले सुनिए आप। We are very surprised to see some of the questions are mistakes and some of the options are mistakes, and in some questions there is not the option of correct answers, okay, which is very very shameful, I guess. For example, I'll show you here in paper 1 question number 90, which union territory has launched a unified portal to provide information about job vacancies in government and private sectors, okay. Here the question is clearly talking about union territory, but here in the option there is no any union territory. Like A option is New Delhi, B is Goa, C Puducherry, D Chandigarh. Though Goa is the correct answer, but Goa is not union territory. Such type of question mistakes are there. Likewise, in paper 2, question number 50, how many feet does an object traveling at 6 feet per second travel in 1 hour? Here are 4 options. Option A 30, option B 300, option C 18,000, and option D is 720. Okay, but here the correct answer is 21,600, which is not there in the option. So we can see such type of mistakes from the SPSC, which was not expected. The main responsible is SPSC, Sikkim Public Service Commission Department, which is headed by the government of Sikkim. So government is responsible. Yeah, government is totally responsible for such kind of activities. एग्जाम कंडक्ट होने से बहुत पहले से अफवाहें तो चल रहे थे कि सीएम साहब ने बहुत लोग को बताया तुम अंडर सेक्रेटरी बन लो, तुम डीएसपी कर लो, तुम आप अकाउंट्स ऑफिसर बन लो। ऐसा सीएम साहब लोगों से जब मिलते हैं तो वो बोल रहे, हमें ऐसा तो सुनने में आ रहे थे आपको अंडर सेक्रेटरी बना देंगे, आपको डीएसपी बना देंगे। तो एग्जामिनेशन के बाद में अब जिस तरह से इश्यूज आ रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में वो फोन अलाउ किया, तो अभी तो बात ही आ रहा है जो भी वो आंसर्स की गवर्नमेंट ने एसपीएससी ने दिया है वो आंसर ही गलत है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, जो आंसर दिया वो भी गलत है। बहुत सारे इश्यूज हैं। इससे पता चल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट तरह से नहीं हुआ है। तो जो भी हमारे 10,000 जैसे युवाओं ने उसमें पार्टिसिपेट लिया, एग्जाम में बैठे हुए थे, तो वो लोग बहुत दुखी है। तो ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंटली काम करने का नहीं दे रहा है। तो इसीलिए एसपीएससी को अगर वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करने देते तो शायद फेयर ये एग्जाम होता, लेकिन ये फेयर नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा आपत्ति है। रिफॉर्म कॉल के गणेश राय ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी राजनीतिक आरोप लगते हैं और उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। इस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। जो एसटीएफ के स्टूडेंट विंग के हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोरबू भूटिया साहब, उनकी, और साथ ही जो एसपीवाईएफ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं शंकर शर्मा, इनकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। और हमारे साथ शिक्षाविद हैं, पेपर की बारीकी और खामियों के बारे में उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रिंगिंग नोरबू भूटिया हमारे साथ हैं। आपने देखा कि किस तरह से आरोप लगा है। गणेश राय ने आरोप लगाया कि एग्ज़ाम के पहले इस तरह की बातें सामने आई कि आपको अंडर सेक्रेटरी बना देंगे, डीएसपी बना देंगे। हालांकि ये आरोप राजनीतिक हैं, लेकिन जो सामने आई है खामियां वो कुछ अलग ही बयान करते हैं। इसमें पूरी तरह से पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हैं, उत्तर विकल्प क्या दिए हैं, वहाँ से लेकर और परीक्षा हॉल के भीतर की खामियां सामने आई हैं। आप क्या कहेंगे गणेश राय की बातों पर? See, before conducting this exam, we have been hearing the rumors about this exam to be compromised. Likewise, on 15 January, there is a civil society which is named as Sikkim Suraksha Samiti. So one youth speaker from there, from that particular platform, addressed about this particular examination
to be compromised and the 45 candidates, 45 selective candidates to be fixed for the particular post. So right now, what we can see is the standard procedure of which the examination was conducted by the SPAC, and all those blunders and errors which they have done. It seems like whatever the youth speaker from Suraksha Samiti they have addressed seems to be true. So now what we can see over here is what type of errors, like I just want to highlight some errors over here. The worst error that they have done in this particular exam is the mistake in the name of our Honorable President of India. So the question here is this a really standard procedure of SPAC? When asked to the secretaries, they informed me that all the questions and answers are set by the expertise. So is this the level of the expertise they have hired for this particular exam? So if SPAC exam for this undersecretary, DSP, and account officer is compromised, so there is a huge possibility that SPAC, the whole body, is fully compromised. And they have already selected the candidates whom they are going to list out the names in this particular examination. So the whole thing is that the 8,000 educated youth future is now in a huge danger. And in regards to the government, so what I feel is, as I told you earlier, that the government is not serious about the employment of young people. And hence, we have a chairman which is appointed by the government itself to look after this commission and who doesn't command the respect of this commission. So SPAC is not like, what we feel is SPAC has not been working as an autonomous body. So here what we can see is the commission, the government is favoring some at the cost of others when the law is equal for everyone. And also this government, this present government, the SKM government, is fully complicit in this matter, and hence it is again a sign of doing all straightforward process in an unfair manner. So this is clear violation of all principle of natural justice. So what we want is this particular exam to be reconducted in a transparent manner, and also those responsible should be accountable. There must be an inquiry set up against them, and a new joint committee should be set up where the new SPAC body, as well as we can request and bring some expertise or bring some members from the committee of UPSC to hold this exam, so that the examination paper level must be set in a very correct way. Up to that, it should match to the SPAC level, and also it should also ensure that there is no other compromise level, or let's say like there is no other cheating or any kind of favoritism done in this particular exam. जी, आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है इसी तरह से गलत तरीके से। अगर आप मांग करते हैं दोबारा परीक्षा हो तो उन लोगों का क्या होगा जिनका सिलेक्शन हो गया है? Can you repeat the question again? Sorry. आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इसी रास्ते से, इसी गलत तरीके से, इतनी त्रुटियों के बीच ही कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और आप ये चाहते हैं कि जब इतनी सारी खामियां हैं, इतनी गलतियां हैं, तो परीक्षा दोबारा हो, रिकंडक्ट हो। उनका क्या होगा जिनका चुनाव हो गया है आगे जाने के लिए, या जो पूर्ण रूप से चुने जा चुके हैं? See, in order to cover their mistake, they have done another mistake. जी, बात ये है कि अभी रिवाइज आंसर की आया है, तो अभी हम देख सकते हैं कि इस पे रिवाइज आंसर की पे ज्यादा से ज्यादा लोग तो टैली कर चुके हैं उन लोगों के मार्क्स, और मुझे फोन भी आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे सेलेक्ट हो गए जो प्रीलिम्स में है। लेकिन अभी प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के मतलब ये नहीं कि आप SPAC क्वालिफाइड, अभी मेन से अभी इंटरव्यू भी बाकी है। सो अगर एग्जाम शुरू में ही इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज लेवल में चला गया हो, तो आप हमें बता सकते हैं कि मेंस और इंटरव्यू में क्या होगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स था वो एक संगठन की तरफ से उठा था, जो सिक्किम सुरक्षा समिति थे। सो उन लोगों ने आह्वान किया था, उन्होंने वार्निंग किया था 15 तारीख को जनवरी को कि अभी आने वाला 16 जनवरी का जो एग्जाम है उसमें 45 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट है। सो इस तरीके का सिस्टम जो है जो सिक्किम में चल रहा है, तो यही आपका भी कल से भी यही होगा। तो उन लोग उस संगठन की तरफ से पूरे जनता को वार्निंग की तरफ से उसने एड्रेस किया था। सो अभी हम क्या चाहते हैं कि जो तरीके से एग्जाम ऑलरेडी हुआ है, तो ये अंत में जाके भी ये कुछ फेयर तरीके से इसका रिजल्ट आने वाला नहीं। अभी तो ये सिर्फ आप मानो ये सिर्फ एक थोड़ा सा स्पार्क है। अभी इसको तो अभी नेग्लेक्ट किया जाएगा तो कल जाके ये क्या करेगा, पूरा घर को जला देगा।
सो यहाँ पर घर का मतलब है कि जो 8,000 जो एस्पिरेंट्स है, एजुकेटेड एस्पिरेंट्स है, जो इस एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से अभी इंतजार किया था, सो उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सब जो अभी से ही बंद नहीं किया, तो कल जाके अब जितने भी लोग हैं जो अभी रिवाइज आंसर की देके घर में सेटिस्फाइड होके बैठ रहे कि दैट माय नेम इज बीइंग सिलेक्टेड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो आई थिंक द एग्जाम शुड नॉट बी reconducted, rather it should continue. So if certain type of thoughts are having, if they are having certain kind of thoughts and confidence, so they should know that this particular exam has been compromised fully, and it is just to show them that they have qualified in the prelims exam, but then they will be rejected in the mains and they will be rejected in the interview. So if this particular exam is not fixed, if a particular exam is not compromised, then the particulars from the very start from the exam, this exam शुरुआत में ही इस बीमारी का इलाज कर लिया जाए और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए, वो गलतियां दोबारा फिर से न हो, तो आगे चलकर सुविधा भी होगी और मल्टीपल जो गलतियां होने जा रही है, बहुत बार गलतियां होने जा रही है, वो होने से बच जाएगी। इस पर चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं एसपीएससी के पेपर लीक मामले की और छात्रों के साथ नाइंसाफी की। कुछ छात्रों ने गुमनाम पत्र भी लिखे हैं और कुछ छात्र अपने नाम सामने न करने की अपील करते हुए कई बातें उजागर भी कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम शंकर शर्मा और शिक्षाविद जो तीर्थ शर्मा है उनसे बातचीत करेंगे और शंकर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर शर्मा, सबसे पहले तो आप उस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जो गणेश राय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के पहले इस तरह की हवाएं उड़ती रहती हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं आपको ये बना देंगे, आपको वो बना देंगे, और उसी का नतीजा ये है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये त्रुटियां हुई है इस बार, इसमें सिर्फ ये एग्जाम की बात नहीं है। सिक्किम में इस तरह का हालत हो चुका है जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं है। देखिए, कुछ महीने पहले वो एडहॉक टीचर के लिए इंटरव्यू हुआ था। उस पर भी क्या हुआ कि जो बिल्कुल क्वालिफाइड है, तो जिसके पास सब कुछ क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, वो लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। वो लोग भी ये होगा हमारा होगा या नहीं, इस डर की वजह से वो लोग भी एमएलए के पास और कुछ पार्टी के नेता के पास जाके कोई आदमी होना चाहिए, आपके बैक में कोई आदमी होना चाहिए, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह का एक इकोसिस्टम सोसाइटी में डेवलप हुआ है कि आप जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, आपके पास जितना भी मेरिट क्यों ना हो, अगर आपके पीछे आपके बैक करने वाले कोई नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। इस तरह का एक सोसाइटी में, समाज में इस तरह का एक विचार, एक विश्वास एक समाज में फीजा हुआ है। और देखिए, वो जो एग्जाम हुआ है, जब एग्जाम का जो एडवर्टीजमेंट आता है उसके बाद भी ये रूमर शुरू हो जाता है कि ये 45 लोग फिक्स थे। 45 लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। और जो एस्पिरेंट्स है वो हमें आके पूछते थे, इधर उधर बात करते थे कि ये बैठने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है उन लोगों का नाम ऑलरेडी फिक्स थे। तो इस तरह का जो समाज में इस तरह का मेरिट को लेकर लोगों के पास विश्वास ही नहीं है कि आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, आपके पास मेरिट है, आप कॉम्पिटेंट है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पीछे में कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इसके चलते जो ये एग्जाम हुआ है, देखिए ये एसपीएससी जैसा एग्जाम तो सिर्फ सिक्किम में नहीं होता है ना, बाहर भी तो होता है, दूसरे स्टेट में भी होते हैं इस तरह के एग्जाम। देखिए, यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो एग्जाम यूपीएससी लगभग 10-12 लाख लोगों के लिए एग्जाम एनुअली हर साल कराती है। इसी तरह से जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें तो
30-35 लाख एस्पिरेंट्स होते, वो कैंडिडेट्स होते, फिर भी इस तरह का कहीं पर भी इस तरह की गलती नहीं होता है। कोई किसी के मन में ये डाउट नहीं है कि यूपीएससी के फेयरनेस के में किसी का डाउट नहीं है ना। लेकिन हमारे सिक्किम में वो एग्जाम होता है सिर्फ 8,000 लोगों के लिए। देखिए 8,000 कैंडिडेट से सेंटर्स भी देखिए, यूपीएससी जो एसएससी का एग्जाम है, देश भर में सेंटर्स होता है। अगर हमारे छिमेकी राज्य में देखे जाए तो वहां पर भी एग्जाम्स होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम सेंटर होते हैं, फिर भी इस तरह का त्रुटियां नहीं होती। लेकिन हमारे सिक्किम में वो एस्पिरेंट से 8,000 लोग और एग्जाम सेंटर से गैंगटॉक के आसपास के कुछ 8-10 सेंटर से, इस पर भी इस तरह का मिस्टेक होना, देखिए ये दिखाता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है कहाँ तक गिरा हुआ है। किसी भी एग्जाम में फेयर नहीं है। देखिए जो टीचर्स का एग्जाम इंटरव्यू हुआ था, ये लोग बोल रहे थे कि जो एग्जाम का सेलेक्टेड जो लोग हुए ना, उन लोगों का नाम एमएलए के डेस्क में, वो मिनिस्टर के डेस्क में, वो वहां से वो सेलेक्ट करते हैं कि इनमें से किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए। उसके बेसिस में उसके बाद जो सिक्किम का वो स्टेट टीचर्स रिक्रूटिंग बोर्ड है, उसके बाद नाम निकलती। जितने भी इंटरव्यू होते हैं, वॉक इन इंटरव्यू हो और रिटर्न इंटरव्यू हो, इस तरह का एक कल्चर सिक्किम में, स्टेट में है। और इसके चलते जो ये एसपीएससी में हुआ है, देखिए एसपीएससी एक कमीशन है, स्टेट का एग्जाम लेने वाला सबसे बड़ी बॉडी है। उसमें एक क्लास 10 का बच्चा जो मिस्टेक नहीं करता है, उस तरह का मिस्टेक क्वेश्चन में कैसे हो सकता है? एसपीएससी में इस तरह की गलतियां क्यों सामने आती है? जी शंकर शर्मा जी, आपने जो बात कही हमने समझा। आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पूरे देश में एसएससी हो या यूपीएससी हो परीक्षाएं कराती हैं, लेकिन कहीं कोई गलती नज़र नहीं आता है, वो पारदर्शिता के साथ उसके नतीजे आते हैं। लेकिन जहां 8,000 ही उम्मीदवार हो और छोटा सा एक प्रदेश हो, वहां पर इतनी सारी गलतियां एक साथ सामने आती है। अब चलते हैं शिक्षाविद तीर्थ शर्मा के पास। तीर्थ शर्मा, इतने देर से आप सुन रहे हैं, आपको हमने दिखाई कि किस तरह से जो छात्र संगठन हैं एसटीएफ के, उन्होंने एक प्रश्न पत्र के एक पन्ने को उलट कर दिखाया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किस सवाल में क्या गलतियां हैं। कहीं पर सवाल ही गलत किए गए हैं और कहीं पर सवाल के जो उत्तर हैं उनका जो विकल्प है वो गलत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल ये है जहां राष्ट्रपति के नाम ही गलत लिखे गए हैं। इस तरह से सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं जो पूरी जो प्रक्रिया है परीक्षा करवाने की, वहाँ पर प्रवेश करने की, उम्मीदवारों की वहाँ से निकलने की, मोबाइल नहीं ले जाने की, दूसरी जो आपत्तिजनक दस्तावेज है वो नहीं ले जाने की, और उनके साथ जो चेकिंग है वो सब करके जाने के बाद भी अगर प्रश्न पत्र ही अधूरे हों और खामियों से भरे हों तो फिर इस पर भरोसा कैसे होगा? तीर्थ शर्मा की आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे फिर ये सवाल दोहराने की, लेकिन फिलहाल जब तक आवाज़ ठीक करते हैं तब तक फिर हम वापस लौटते हैं शंकर शर्मा के पास। शंकर शर्मा, आपने कई बातें जो कही हैं वो काफ़ी एक तरह से विपक्ष का भी वही आवाज़ है। वो कहते हैं कि इस तरह के एक माहौल बना हुआ है कि जिन लोगों का राजनीतिक पृष्ठभूमि है या जिन लोगों को राजनीतिक सह प्राप्त है, जिनको पार्टियों के साथ उठना बैठना है, जिनका उन्हीं का काम हो रहा है। और कई बार ये भी देखा गया है, आप ये कह रहे हैं कि कई बार ये भी देखा जाता है कि नेताओं के पास उम्मीदवारों की सूची होती है, उनका नाम होता है। आपने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के आप सदस्य हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हैं, और अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आप अपनी आवाज़ को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? सरकार के पास आप क्या इन बातों को लेकर जाते हैं और क्या सरकार का क्या रवैया रहता है? देखिए, इस पे तो हम बहुत पहले से ये हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह का ये हमारे यहाँ पे
कुछ ये ट्रांसपेरेंसी जिसका कुछ नाम ही नहीं है। अगर आपके पास अगर आप पार्टी के जो गुड बुक में नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही ये असंभव जैसा है। देखिए कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले वो एडल्ट टीचर का इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के पहले कुछ टीचर्स वो जो इंटरव्यू की प्रक्रिया से नाखुश होके वो लोग धरना में बैठ गए थे। वो धरना में बैठने वाले देखे 30-35 टीचर्स थे, उससे भी ज्यादा थे, उसके अराउंड टीचर्स थे और वो लोग बहुत सालों से कुछ टीचर बहुत सालों से इसमें पढ़ा रहे थे। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ जो धरना में बैठने वाले टीचर्स थे एक का भी नाम सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना, जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो सबका सब वो एग्जाम मेरिट में वो सेलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो क्यों सेलेक्ट नहीं हुए ये क्लियर था, सब लोगों का पता था कि उन लोगों का नाम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस के लिए वो क्वेश्चन कर रहे थे ना। तो एक ये एग्जाम्पल देखिए, ये सिक्किम में आप सिक्किम में और किसी के पूछिए, ऐसा माहौल है कि कोई भी देखिए कोई भी बच्चा कोई भी एस्पिरेंट है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, जितना में क्वालिफिकेशन क्यों ना हो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी एक आदमी चला जाता है मिनिस्टर को मिलने के लिए या चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए, ये बोलने के लिए ये अश्योर कराने के लिए कि मैं इधर उधर पार्टी का नहीं हूँ, आपका ही मैं एक लॉयल मेंबर हूँ, इसलिए कृपया करके मेरा नाम मत हटा दीजिए। मतलब इस तरह का माहौल है ना सोसाइटी में है। और इसके लिए तो हम बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं कि SC को देखिए, SC को वो एक सिस्टम में चेंज कराना है। और एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी जो इंस्टीट्यूशन का हेड करने वाले लोग हैं ना वो प्रोफेशनल नहीं है, डेपुटेशन की वजह से कुछ दूसरा डिपार्टमेंट के लोग टिक करके कोई डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। जो रूलिंग पार्टी के नजदीक का आदमी है उसको मेन जगह में पहुंचा गया है। ये करते इस प्रक्रिया में जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो उस काम के लिए ट्रेन लोग हैं, वो सही जगह पे नहीं है। इस वजह से ये देखिए, ये जो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में भी इस तरह का मिस्टेक नहीं होता है, वो SPSC जैसे एग्जाम में इस तरह का मिस्टेक हो रहा है। तो ऐसा अगर सिस्टम ऐसा है तो लोग कैसे बिलीव करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे इस सिस्टम में। ये बहुत बड़ा और सबसे ज्यादा जटिल प्रॉब्लम ये है अभी स्टेट पे मुझे लगता है। जी रिंगजिंग नोरबू भूटिया साहब, आप जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह की बात शंकर शर्मा भी कह रहे हैं और उनका भी बहुत सारा सवाल है और वो कड़े सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आप सरकार के पास भी जा सकते हैं, आप विपक्ष की एक भूमिका भी अदा कर रहे हैं, आप जो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है वो उनको जस्टिस दिलाने के लिए आप मांग भी कर सकते हैं। आप किस तरह की मांग को आगे बढ़ाना चाहते हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि आपने परीक्षा को स्थगित कर परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है और शुरुआत में ही आप चाहते हैं कि इस तरह की दोबारा परीक्षा हो जाए तो आगे गलतियां नहीं होगी, लेकिन अब इसकी जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, कमेटी भी गठित कर दी गई है। हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह का एक मामला सामने आया और वहाँ पर इसी तरह के एक मामले को CBI जाँच कर रही है और भी कई जगहों के मामले हैं जहाँ पर इसी तरह उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। और अगर असम की बात करें तो असम में इस तरह की जांच हुई और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नतीजे काफ़ी पारदर्शी तरीके से सामने आ रहे हैं। आपकी क्या मांग रहेगी आगे चलकर, अगर SPSC में सुधार लानी हो, आगे इस तरह की परीक्षा में गलतियां ना हो, परीक्षा रेगुलर हो, नियमित रूप से हो, तो आप किस तरह से बातें आगे रखेंगे? पहले तो जो कमेटी अभी गठन हुआ है उसमें मैं वेलकम भी करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ बातें थोड़ी सीरियसली ले जा रही है। बट देन I am very much worried that the report which the committee will submit after 21 days, will it be on biased or unbiased manner? So will it be the report which will give justice to all those 8,000 aspirants, or will it be in favor of the commission itself? And on the mistake which has already been made, now in order to rectify it, they are making another mistake. So I think the new committee which has been set up to do all this investigation, and after 21 days,
I hope that this new high-level committee will give the exact report, and also, in order to make this particular exam fair, I want what we request is there should be a new committee to be formed, because SPSC का जो level है जो अभी question हमने विगत टाइम से दिखा है वो clearly state करता है कि that SPSC का जितना भी जो expertise है जितना भी commission है वो इस exam को conduct करने के लिए वो एकदम qualified नहीं है। अभी बातें यहाँ तक भी इतना तक भी नेग्लेक्ट किया क्या कि किसी जगह पर इन्विजिलेटर्स को एग्जाम के 2 दिन पहले ही चेंज किया, और अब हम बाद में जब हमने इसके बारे में क्वेश्चन राइज किया तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशन वी आर रनिंग लॉट इन शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। सो from my side of question is if they don't have the particular needed amount of manpower, then why were they so much in hurry to conduct this exam? So this shows the negligence, and this also shows a very clear indication that this exam is already compromised and its candidates are already fixed. So a new committee should be formed, new joint committee should be formed, and also the committee from the UPSC, if possible, as my suggestion, of a committee from the USP, a joint committee should be formed, and it should be handed over to those competent person, those competent authority who can manage this, who can conduct this exam in a very proper manner, and also set question in the level where SPSC should be. जी, तीर्थ शर्मा, there should be an inquiry to those person responsible, and because it will be an example to those corrupt official and to those corrupt system that they are in future this particular compromise in such high level exam will not be tolerated. जी, जो इतने बड़े स्तर के परीक्षाएं हैं इसमें इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फाइनल रिमार्क्स था आपका रिंगजिंग नोरबू भूटिया साहब। हम आप जानना चाहते हैं तीर्थ शर्मा जो शिक्षाविद हैं, और इनकी बातें अधूरी रह गई थी। तीर्थ शर्मा से हमने पूछा था कि जो प्रश्न पत्र में जो खामियां नजर आई, बहुत सारी खामियां जो परीक्षा संचालन करते वक्त सामने आई है, लेकिन जो खामियां प्रश्न पत्र में हैं, प्रश्न में हैं और उत्तर विकल्प में हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो परीक्षा पेपर सेट करते हैं और उत्तर भी देखते हैं। अगर इनसे इस तरह की गलतियां हुई हैं तो इस तरह के इतने बड़े स्तर की परीक्षा में भरोसा किस तरह से आए? जिस तरीका का क्वेश्चन जो एरर हुआ, मिस्टेक हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, उसको हमने भी माना है और उसी के लिए जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट देगी और सच सामने आएगा। और दूसरा बात, जिस तरीका का मिस्टेक्स हुआ है उसमें मुझे लगता है कि वो जो SPSC इज नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द स्टेट। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा विचार करके अच्छा कमेटी, अच्छा आदमी के साथ, जैसे कोई भी कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे आजकल तो बहुत सारे हायर भी किया जा सकते हैं, जैसे मैं उस दिन भी बोला था UPSC का भी सपोर्ट ले सकते हैं और बहुत सारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह है। तो मुझे लगता है कि इस तरीका के मिस्टेक तो आज का नहीं है, मैं तो काफी सालों से देख रहा हूँ। ये आज का बात नहीं कर रहा हूँ, ये 21-23 का बात नहीं कर रहा हूँ। 2003 से मेरे पास इतना ज्यादा प्रूफ है कि उस वक्त भी ये सरकार नहीं थी, लेकिन SPSC थी। मे भी SPSC का ऑफिसर्स लोग चेंज हुआ, लेकिन वो सिस्टम अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो पहले ये सब चीज के लिए पहले तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जो सिक्किम का ऑफिसर लोग को पहले भी देखा गया है, वो तो कॉम्पिटेंट, वो पास करके, वो कंपटीशन पास करके वो रिस्पॉन्सिबल जगह में है। और अगर कोई पॉलिटिशियन उस रिजल्ट को, उस चीज को अगर मैनिपुलेशन करता है तो गलती पॉलिटिशियन का नहीं है। MLA मिनिस्टर से जो बात कर रहे थे शंकर जी, वो उनका नहीं है, गलती तो SPSC का है, क्योंकि वो तो ऑटोनोमस बॉडी है। वो अपने रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट क्यों वो MLA का रिकमेंडेशन के लिए भेजता है? वो खुद ही पब्लिश करे, क्योंकि जैसे UPSC जो रिजल्ट पब्लिश करती है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं भेजती है, तो क्यों MLA और मिनिस्टर को भेजना है? तो इतना सशक्त वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका बॉडी हो, उनका जो एग्जाम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो, उन पर वो इंट्रीगिटी हो, तो ये सब चीज नहीं आएगी मुझे लगता है। जी, जितनी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं
और उनकी मेहनत को देखते हुए आप हमारे जो आज लगभग सभी मेहमानों ने कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो परीक्षा पत्र में जो खामियां नज़र आई उसके लिए जांच कमेटी गठित की गई है। आपको लगता है कि परीक्षा दोबारा हो और इस तरह की कमियों को दूर कर लिया जाए तो आगे चलकर एसपीएससी भी एक उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है? मुझे लगता है कि ये जांच कमेटी जो मैंने देखा, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूट कॉज इसके अंदर में क्या चीज है, माने कैसे ये सब चीज हो रहा है, इसको तथ्य को बाहर लेके आएगी। और इसके लिए सिंपल ये इन्वेस्टिगेशन कर दिया और छोड़ दिया और फिर एग्जाम कंडक्ट किया, ऐसे नहीं होगा। एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए जो इन्वॉल्व है इसमें, जिसका जिम्मेदारी थी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन था, गवर्निंग बॉडी थी, जिनको सिक्योरिटी सौंप दिया गया, जो एग्जाम के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस एजेंसी पर भरोसा किया, इन सभी को जांच होके जो भी रेस्पॉन्सिबल है उनको स्ट्रिक्टली सजा देना चाहिए, और ताकि इन फ्यूचर कोई भी ये हिम्मत ना करे कि ऐसा गलती फिर दोबारा हो। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आज जो चर्चा हुई है हमें लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज आएगा सरकार के पास भी कि इतने बड़े स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह की खामियां ना हो। इसके लिए कार्रवाई की ज़रूरत है और आपके दबाव की वजह से ही सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है। आगे चलकर ये देखना होगा कि क्या इसमें जो खामियां आई हैं उसे दुरुस्त कर लिया गया और एसपीएससी जो एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है उसमें जो परीक्षार्थी हैं वो भरोसा कर पाएँ। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।